Hello everyone, welcome back to the newspaper analysis. As promised, we're bringing to you the analysis for June 21st and 22nd together. This will save time and whatever was of note could easily have been clubbed in one lecture, hence this. So the very first piece of news is the US marks slavery's end on Juneteenth holiday, and this is a newly declared public holiday. On June 19th, 1865, in Texas coastal area, the Union Army, which had emerged victorious after the Civil War, had announced to African Americans that even if some in Texas were trying to ignore it, enslaved people were now free. So essentially, they marked the end of slavery. This also, of course, gains a lot of prominence this year because this is 1 year after George Floyd's murder, which had sparked the Black Lives Matter protests. So that is something that you should be mindful of. The next news piece that you ought to know or ought to read up in the newspaper of June 21st is this article, which is "We were always hopeful that justice will prevail." Now, the major thing that you need to know in this particular article, it's an interview of Devangana Kalita. What would be important from the exam point of view is reading about the Unlawful Activities Prevention Act. ठीक है, अब because this act has been under the scanner for very long, owing to its allegedly draconian provisions and how easy it is to detain people under it and so on and so forth. Therefore, you should know what exactly is happening with respect to this act. The next is about the Krivak class frigate, which is here. Alright, work begins on Krivak class frigate. This was on page number 8 of June 21st newspaper. This Krivak class frigate, it is being built with technology transfer from Russia by Goa Shipyard Limited, and India had earlier procured 6 Krivak class frigates in 2 different batches, the Talwar class and the upgraded Teg class. अभी अब आपके पास सवाल आ सकता है of course about Krivak, क्या है ये, you should have an idea of what it is. क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शिप्स की बात हो रही है और आपको प्लेन लगे या मिसाइल लगे, तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा 2 डिफरेंट बैचेस, द तलवार क्लास एंड द अपग्रेडेड तेग क्लास. तो अगेन तलवार तेग थोड़ा सा रिलेटेड टू फ्रिगेट्स, ऐसे अपने दिमाग में इसको कोशिश कीजिए सेट करने की. द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ ऑन द सेम पेज इज there is a pact signed to conserve rare turtle in Assam. You of course need to know, और ये कई बार इनफैक्ट क्वेश्चन आते भी हैं इस तरह के, तो आप मतलब दिस वोंट बी समथिंग न्यू, यू शुड बी अवेयर. तो जैसे रेयर फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है, जिसे निल्सोनिया निग्रिकांस कहते हैं, साइंटिफिक नेम है, इसीलिए आइटैलिसाइज्ड है. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अंडर द IUCN रेड लिस्ट, और इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. हालांकि इसकी काफ़ी तादाद में इसको मारा जाता है. इट इज़ हंटेड फॉर इट्स मीट एंड कार्टिलेज एंड इज ट्रेडेड इन रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. सो दैट इज़ देयर, बट दिस इज अ डिस्क्रिपेंसी दैट एग्जिस्ट्स इन द एक्ट. नाउ व्हाट यू शुड नो ओवर हियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या स्पीशीज़ है, साइंटिफिक नेम भी कोशिश तो कीजिए उसे याद रखने की, और उसका क्या IUCN स्टेटस है. ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN स्टेटस जो है वो किसी भी स्पीशीज़ का एट्सेट्रा, ये कई बार पूछ लिया जाता है. और फिर ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियरली थ्रेटन्ड या नियर थ्रेटन्ड, इन सब में क्या डिफरेंस है, या लीस्ट कंसर्न. ठीक है, ये सारे कैटेगरीज होते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा. Okay, so this is what was important in the 21st newspaper from our perspective. The next, coming to June 22nd, this is one article that you should know. This is Supreme Court seeks government decision on ex gratia payment. ठीक है, अब इसमें इन्होंने बाकी तो चीज़ें जो भी मतलब बैक एंड फोर्थ चल रहा है, what you need to pay attention to is section 12 of the Disaster Management Act.
अब इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या एजेंसी क्या करती है आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सेक्शन 12 में लिखा क्या है, दैट द नेशनल अथॉरिटी शैल रेकमेंड गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर विच शैल इंक्लूड, एंड देन देव लिस्टेड 4 थिंग्स। What is important here is this term disaster. ये जो अभी कोर्ट में बात चल रही है वो इन्हीं को चीज़ों को लेकर चल रही है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट हमें देना है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में जो लिखा हुआ है, एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा, वो देना है इस केस में या नहीं। अब जो पिटिशन लाए हैं उनका ये सबमिशन है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोविड-19 को एक नेशनल डिजास्टर कह दिया है, ठीक है। अब क्योंकि डिजास्टर टर्म जब वो फुलफिल होगा तभी तो आप इस एक्ट को अप्लाई करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को। अगर आप मान लीजिए इसको एक मेडिकल इमरजेंसी का रूप देते हैं या इसे कुछ और कहते हैं तो फिर ये टर्म डिजास्टर अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे पिटिशनर्स का यही कंटेंशन है कि नहीं, कोविड-19 को नेशनल डिजास्टर का दर्जा दिया गया है और इसके चलते एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी ओर से कुछ कंटेंशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल कोट द सोलिसिटर जनरल speaking for the government said that it is not that we do not have money, it is that our focus is rather on expenditure for other things like public health interventions, social protection and economic recovery for the affected communities. All right, so we'll see how this pans out in the long run. Then there is an article on page number 8 which is yoga a ray of hope amid covid, ठीक है। तो इसमें 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था 21 जून को। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि एक एम योगा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसे बना भी रही थी इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट देयर इज अ मोटो कॉल्ड वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो अगेन यू शुड नो कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। एंड देन देयर इज समथिंग इन द op-ed page on page 7. This was an article on a case to decriminalize suicide, ठीक है। अब इसमें आपको पहली बात सेक्शन 309 पता होना चाहिए जिसके तहत सुसाइड को क्रिमिनलाइज किया गया है। फिर आपको सेक्शन 115(1) ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पता होना चाहिए। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो 2017 में पास की गई। अब इसमें जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी कोई ऐसा इंसान होगा who is suffering from some mental illness and then attempts to commit suicide will not be tried and punished under the said code which is the Indian Penal Code. तो लेकिन of course इसमें ये क्या है कि that person should be suffering from mental illness. There is presumption of severe stress in case of an attempt to die by suicide. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसके अगेंस्ट एक एक्सेप्शन टाइप एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तो सेक्शन 309 इज वेरी मच पार्ट ऑफ द आईपीसी, राइट? सो देर आर ओपिनियंस, देर आर डिफरेंट केस लॉज विच पीपल यूज टू जस्टिफाई देयर स्टांस ऑन इट. सो दोज हु आर्ग्यू that this particular section 309 should be retained and they speak in favor of this penal provision, तो वो अक्सर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस साइट करते हैं. और राइट टू लाइफ जो है वो एक नेचुरल राइट है अंडर आर्टिकल 21, तो उसको भी साइट करते हैं, saying that therefore suicide is an unnatural termination or extinction of life and therefore it is incompatible and inconsistent with the concept of right to life. अब दूसरा केस है इसमें अरुणा रामचंद्र शनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ऊपर वाले को एंडोर्स किया था. अरुणा शनबॉग का केस आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि जब हम पैसिव यूथनेशिया की बात करते हैं या इनफैक्ट यूथनेशिया की बात करते हैं तो इसमें इस पर्टिकुलर केस में फिर पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया था और इंडिया में इनफैक्ट अभी यही अलाउड है. तो एक्टिव यूथनेशिया इज स्टिल नॉट अलाउड. नाउ व्हाट यू कुड डू इज वंस दिस लेसन इज ओवर, प्लीज गो एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया and mention that in the comments. The next case law that is important, and this is from the side of those who believe that attempting suicide should not be criminalized. One is Maruti Shripati Dubal versus State of Maharashtra.
Then there is also the case of Chenna Jagdishwar versus State of Andhra Pradesh and P. Rathinam versus Union of India. तो इसमें इन्होंने मतलब ये बताया है कि penalizing someone under section 309 may not really achieve what you're trying to achieve if you're trying to deter suicide, because it is basically like a violation of articles 14 and 21 and is therefore void and unconstitutional. और जो अभी मैंने केस मेंशन किया था विच इज़ मारुति श्रीपति दुभल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986 का, उसमें ये भी बोला गया था कि जो भी आपके कई एक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जैसे अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें क्या कहा जाता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये भी अंडरस्टूड है कि फ्रीडम नॉट टू स्पीक एंड टू रिमेन साइलेंट. सो बेसिकली द पॉजिटिव कॉनोटेशन ऑफ दैट राइट, in it only inheres the negative connotation as well. Positive, negative here not meaning something good and something bad. Positive and negative in the sense of doing something and not doing something. So speaking or not speaking, right? तो वही यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि अगर आप right to life read कर रहे हैं तो right to life अगर एक तरफ exist करता है तो एक right not to live और not to be forced to live भी exist करता है. अगर आपको इस पे थोड़ा बेहतर जानना हो या you're in the mood to watch something on this, the film Guzarish, which starred Hrithik Roshan, Aishwarya Rai and Aditya Roy Kapoor among others, this had sort of captured the pain of someone who was wanting to undergo euthanasia, etc etc. तो आप ये देखिएगा और इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा. Okay, so that was it. Thank you so much.